ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9 ਦਾ ਸਮ applications of trigonometry। ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 10th। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਈਨ, ਕੋਸ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਨ, ਕੋਸ, ਟੈਂਜੈਂਟ, ਕੋਸੈਕੈਂਟ, ਸੈਕੈਂਟ ਤੇ ਕੋਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4th ਸਮ। ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਅ ਟਾਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਹੈ। top of the tower from a point on the ground, ground ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, which is 30 meters away from the foot of the tower। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਵਰ ਦਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। is 30 degree, is 30। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ 30 ਮੀਟਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ। ਜੋ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਆਹ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ is equal to height of ਟਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ 30 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ AB ਬਟਾ AB by BC is equal to ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈ ਬੇਸ is equal to ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, tan ਥੀਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ AB ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। BC ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ tan ਹੈ, tan ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, h by 30। tan 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/√3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ h/√3 is equal to 30। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ h ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 30। ਆ ਜਿਹੜਾ √3 ਹੈ ਇਹ ਆ ਜੋ √3 ਹੈ ਇਹ 30 ਦੇ
ਬਾਏ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 30 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3, ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 1 1 3 1 10 इज इक्वल टू 30, यानी कि h बराबर कितना आ गया 10 अंडर रूट 3। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਐਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.73 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ 10 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1.73। ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਈ 10 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 17.3 मीटर, यानी कि ये अपने को टावर की हाइट आ जाएगी जो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜੋ ਹੈ 5th 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ। फिफ्थ सम पंजवें सवाल दे विच कहंदा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जिहड़ा कि 60 मीटर की ऊंचाई के उत्ते इस जगह के उत्ते उड़ रहा है। द स्टेट अटैच्ड टू द काइट इज टेंपरेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहंदा कि जिहड़ा काइट है, काइट जो उड़ रहा होंगे तो आपको पता भी काइट इस तरीके दे नाल ही उड़ेगा। जिहड़ा बंदा है वो इस जगह ते खड़ा होएगा तो स्ट्रेट हाइट दे नाल वो उड़ रहा हैगा। आह मतलब कि उनकी डोर होगी, रस्सी होगी, पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। द इनक्लाइनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जिहड़ी ये रस्सी है ये इस जगह के उत्ते 60 डिग्री के कोण नाल झुकी हुई है। Find the length of the string assuming that there is no slit in the string। कहंदा कि जिहड़ी आह रस्सी है, रस्सी की हाइट है जिहड़ी ये पता करो उहदे विच बिल्कुल भी ढिल नहीं हैगी, उहदे विच बिल्कुल भी ढिल नहीं हैगी। ते जिहड़ा आह काइट सीगा ये 60 मीटर की ऊंचाई के उत्ते उड़ रहा सीगा। तो आप बेटे इनू ए मन लांगे, इनू बी मनांगे, इनू सी मनांगे। रकम तुसी प्रॉपर समझ चुके होवोगे। तो हुण की करांगे, आपां नू जो गिवन दिता होया है वो की है हाइट। हाइट ऑफ स्ट्रिंग काइट इज इक्वल टू 60 मीटर, यानी कि आप लिखांगे पतंग जमीन तो ऊपर उड़ रहा है बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, जो एंगल दिता है वो अपन दिता है 60 डिग्री। तो आप लिखांगे इन ए बी सी विच ये की बन गया बेटे ए बी। हुण आपां की लवांगे, हुण आपां परपेंडिकुलर लवांगे ए बी ते आपां स्ट्रेट हाइट पता करनी है ए सी, यानी कि अपने को की हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। ते जिहड़ा लंब बटा कर्ण हुंदा वो किस चीज के बराबर हुंदा है साइन थीटे दे। लंब है जिहड़ा, लंब नूं आपां कहंदे आ परपेंडिकुलर, कर्ण नूं आपां कहंदे आ हाइपोथिनस। ठीक है, तो ए बी अपन 60 दी हुई है, ए सी आप फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू साइन 60 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया 60, ए सी आप फाइंड आउट करनी है। जो साइन 60 की वैल्यू होंगी है वो होंगी है √3/2। इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जदों इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा AC √3 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई
2 ये बन जाएगा AC √3 इज इक्वल टू 120। जे आप AC दे इक्वल करांगे तो अपने को आ जाए 120 बाय √3। तो मैं तुहानू दस्सिया सी √3 दे विच वैल्यू नहीं हुंदी, तो ये बन जाएगा √3 बाय √3, ये बन जाएगा 120 √3। √3 ने जो √3 ना मल्टीप्लाई करांगे अपने को पूरा 3 बन जाएगा, 3 1 जा 1, 3 1 जा 4 इज इक्वल टू 12। तो अपने को आ गया 40 √3 एनीमीटर। जो आ स्टेट हाइट है धागे दी डोर जो पतंग नाल बन्नी हुई है ते ग्राउंड नाल बन के आप पतंग नूं स्थिर करता, उनकी हाइट एनी बन जाएगी। जे इहनूं प्रॉपर कटना है फिर यह बन जाएगा 40 √3, 40 मल्टीप्लाई 1.73 बाय 100, 0 नाल 0 कट्टी गई, ठीक है। तो इहनूं मल्टीप्लाई कर लो, 4 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 3 इज इक्वल टू 12, 1 कैरी आ गया, 7 1 जा 4 इज इक्वल टू 28, 1 ऐड किया 92, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 आ गया, विच 2 ऐड किया 6 आ गया, दिस वन। यानी कि अपने को हाइट आ जाएगी 69.2 मीटर, जो उस धागे की लंबाई होएगी जिस दे नाल पतंग है जिहड़ा उसनूं बन्निया गया सी ते पतंग नूं स्थिर किया गया सी। इस तरीके दे नाल बेटा यह सम है जिहड़ा यह निकलना सीगा। हुण आपां करदे हां अपना नैक्सट सम 6। आपां करदे हां 6वां सम। 6वें सम दे विच कहंदा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। आपने बोले बेटे एक 30 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, 30 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, एंदे तो कुछ मीटर की दूरी के उत्ते एक आदमी खड़ा है जिंदी हाइट 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल बनता है फ्रॉम हिज आईज उस दियां अखां तो, यानी कि जब बंदा खड़ा तो बंदे दियां अखां इत्थे होणगियां, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग दे टॉप तो, ठीक है। इस तरह एक कोण बनता है, उनदियां अखां ते बनता है, इनक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाता है। इत्थे जिहड़ा कोण बनदा बेटे उस दियां अखां ते वो बनदा 30 डिग्री, ते ये जिहड़ा बंदा है 1.5 मीटर वाला ये उधर नूं चलना शुरू करता है। जदों ये बंदा उरे पहुंचदा तो 60 डिग्री बन जाता एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एज ही वॉक जिवें ही, एज मीने जिवें ही मीने ओह वॉक्स मीने चलना शुरू करता है टूवर्ड्स वाल नूं द बिल्डिंग, बिल्डिंग वाल नूं चलना शुरू करता है। तो जो कोण है वो 30 डिग्री तो बदल के इत्थे कितना हो जाता 60 डिग्री हो जाता। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कहना डिस्टेंस पता करनी है जिन्नी ओह दूरी बिल्डिंग वाले चल के गया, ठीक है बेटे। इक्वेशन तुसी समझ चुके होवोगे। तो आप इहनूं नाम दिंदे आ राजे ए दा, बी, सी, डी, ई ते एफ। जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि बी, सी, डी, एफ एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम है, ठीक है। कहंदियां चारे साइड्स आपस दे विच बराबर होणगियां, ठीक है। तो जे 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर रहेगी। तो आप ये वेखांगे भी आह जिहड़ी हाइट है अपने कोल ये हाइट कितनी है। आप की करांगे आप ए बी फाइंड आउट करांगे। ए बी फाइंड आउट करने लई ए सी जो कुल हाइट है माइनस बी सी। ए सी जो कुल हाइट सी वो सी 30 मीटर, बी सी की हाइट है 1.5 मीटर।
एनू जो आप 1.5 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 29 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 28 28.5 मीटर आ गया जो अपने को आह हाइट आ जाएगी 28.5 मीटर। हुण अपना सम है जिहड़ा आसान हो जाएगा निकलन दे विच। तो आप पहले नंबर पे की करांगे इन त्रिभुज ए बी ई विच आप आह लवांगे ए बी ई कली आह त्रिभुज लवांगे आप एक बारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ AB बटा BE यानी कि लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 60। तो AB है जी वो अपने को हाइट आ गई 28.5 BE अपन को पता नहीं है tan 60 की वैल्यू अपने को आ जाएगी √3 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे बेटे ये बन जाएगा BC √3 इज इक्वल टू 28.5 BC इज इक्वल टू 28.5 बाय √3 बाय √3 ये आ गया 28.5 √3 बाय 3 ये अपने को आ गया बेटे B ते E की वैल्यू आ गई। हुण आप की करांगे हुण आप करांगे AB बटा BF इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB तो अपने को 28.5 ही है BF अपन पता नहीं tan 30 की वैल्यू होंगी है 1 बाय √3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे BF इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 आह अपने को आ गई टोटल डिस्टेंस यानी कि दिस वन ये आ गई अपने को 8.5 √3 जड़ी आह सी ये अपने को आई सी 28.5 √3 बाय 3। हुण आप की करांगे बेटे जड़ी टोटल डिस्टेंस आई है आ टोटल डिस्टेंस दे विचों आपां आह डिस्टेंस है जिहड़ी ये सबट्रैक्ट कर दांगे अपने को आ चीज आ जाऊगी। देखो किवें जिहड़ी टोटल डिस्टेंस है वो अपने को आपां पता की करनी है FE बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है FB माइनस EB ठीक है। तो टोटल कितनी आई अपने को 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 बाय 3 एंड बटा 1 लग जाएगा। तो अपने को की है इतने 3 एलसीएम आएगा 1 1 3 इज इक्वल टू 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 5 इज इक्वल टू 15 1 कैरी आ गया 3 1 8 इज इक्वल टू 24 दे विच 1 जोड़िया 25 2 कैरी आ गया 3 1 2 इज इक्वल टू 6 दे विच 2 जोड़िया तो 8 √3 माइनस 28.5 √3। हुण आप की करांगे जेड़ा अपने को 85.5 √3 आया इहदे विचों आपां 28.5 √3 सबट्रैक्ट कर दांगे 0 0 15 15 दे विचों 8 गया 7 इत्थे रह गया 7 7 दे विचों 2 गया 5 तो अपने को कितना आ गया 57 √3 बाय 3 इहदे नाल आह कट देंगे तो अपने को आ जाएगा 19 90 1 3 इज इक्वल टू 57 तो 90 √3 मीटर ਦੀ डिस्टेंस है जी वो अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है जेकर तुम इहदी प्रॉपर मीटर के डिस्टेंस कढ़नी होवे तो तुहाडे कोल रिजल्ट आ गया 19 √3 19 मल्टीप्लाई 1.73 बाय 100
ਤਾਂ ਆਪਾਂ 173 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 9 1 ਦਾ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 27 7 ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ 9 1 ਦਾ 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 63 5 ਬਣ ਗਿਆ 6 कैरी आ गया 9 ਤੇ 6 15 3 1 7 1 7 5 ਤੇ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ 8 ਬਣ ਗਿਆ 7 ਤੇ 5 ਐਡ ਕੀਤਾ 2 ਬਣ ਗਿਆ 1 2 और 3 बन गया तो अपने को कितना आ जाएगा 3287 बाय 100 एनु आप लिख देंगे 32.87 मीटर ये अपने को टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जेड़ा वो इस बिंदु तो 30 डिग्री के कोण तो चल के 60 डिग्री के कोण तक गया सी। तो इस तरीके दे नाल बेटा ये सामा जेड़ा है सॉर्ट आउट होना सीगा। उम्मीद करदा कि तुहानू यह पढ़ाउण दा तरीका वधिया लग्या होवेगा। जे को तुहानू मेरे पढ़ाउण दा तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अज लिए इन्ना ही, नैक्सट क्लास दे विच फिर मिलांगे अगले साम लैके। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय।